15 years back. It was a spontaneous conception and unbooked pregnancy. She delivered a female baby of average weight through vaginal route at home under the supervision of lady birth attendant. Her second pregnancy was 10 years back. Also unbooked pregnancy. She delivered a male baby of average weight under the supervision of lady birth attendant at home through vaginal route. And her third pregnancy was 8 years back. It was spontaneous conception, unbooked pregnancy. She delivered a male baby of average weight at home under the supervision of lady birth attendant. And her fourth pregnancy was 5 years back. It was a spontaneous and unbooked pregnancy. She delivered a male baby of average weight at home under the supervision of lady birth attendant. However, in last pregnancy, she gives history of increased blood. She gives history of increased blood loss, for which and she was referred to private clinic where bleeding was stopped after giving injectable medication, and she was transfused parenteral iron at that time with no erection noted. All babies are breastfed, vaccinated, alive, healthy with mother. हम्म Her age ठीक of है menarche her age of menarche is 13 years. Cycle is 5/30, regular with average flow, with no complaint of intermenstrual bleeding, postcoital bleeding, dysmenorrhea, dyspareunia. Couple never practiced any contraception. हम्म She gives no history. She gives no history of diabetes, hypertension. She gives no history of diabetes, asthma, ischemic heart disease, hepatitis B and C. Her surgical intervention has been never done. She gives no हम्म family history of diabetes, hypertension, asthma, ischemic heart disease, hepatitis B and C. She is non-smoker, non-addict with normal sleep and appetite pattern. Her surgical intervention has been never done. She is living in her own house. Her husband is a laborer. Basic necessities of life are met with difficulty. ठीक A है 30 young lady sitting comfortably in bed, well in time, space, and person, and answering tangentially to my questions. Her pulse is 90 beats her pulse is 89 beats per minute. Blood pressure at that time is 130 by 80 millimeter of mercury. My respiratory rate is 24 breaths per minute. She is afebrile. She is pale. There is no clubbing, colonychia, jaundice. Thyroid is not enlarged. Orodental hygiene is satisfactory. Orodental hygiene is satisfactory. Both breasts are normal looking. Normal vesicular breathing with no added sound. Apex beta is in fifth intercostal space, middle to the mid clavicular line with no added sound. There is no pedal and sacral edema. On inspection, abdomen is protuberant with centrally placed umbilicus. Moving with respiration, there are no visible pulsations. However, stria gravidarum or pregnancy is present. On superficial height is 36 centimeter with the longitudinal lie. Breech presentation. Liker seems to be adequate. Estimated fetal weight 2.5 plus minus 0.5 kg, and fetal heart rate 144 beats per minute. इस एस्टिमेटेड फीटल वेट कितना बताया आपने Ma'am, almost 2 plus minus 0.5 kg. 2.3 to 2.5 around about इतना था. मैम इसमें अच्छा पॉइंट प्लस माइनस 0.5 केजी ऐसे बोल सकते हैं. 2.5 प्लस माइनस 0.5 केजी. हाँ या मतलब बस इसको आप रेंज में भी बोल सकते हैं 2 to 2.5 2.5 to 3 kg इस तरह से यस. आप बोल सकते हो ठीक है क्योंकि क्लिनिकल एस्टिमेशन पे इतनी ही रेंज होती है अलबत्ता ये नैरो डाउन होती जाती है जब आप अल्ट्रासाउंड पे एस्टिमेट करते हो एंड द प्रिसाइज वेट असेसमेंट इज ऑन एमआरआई ओनली जिसमें सिर्फ 3% जो है वो एरर होता है अल्ट्रासाउंड पे 10% एरर होता है एंड क्लिनिकली देयर मे बी एन एरर ऑफ अप टू 35 to 40% और उस पर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं ओबेसिटी है पॉलीहाइड्रोमियोज है उसमें की वेट एस्टिमेशन और भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है ओके नाउ समरी तो आपने इसकी ऑलमोस्ट बता ही दी है बेस्ड ऑन हिस्ट्री ओनली अब इसको जरा सम अप कर दें आप यस मैम. इसको सम अप कर दें जरा ग्रेविडा 5, टेरा 4, हम्म previous SVDs at at 9 months of gestation, having हम्म hypertension in pregnancy, presented with hypertension in pregnancy and हम्म antepartum hemorrhage. हम्म Fetal height is 36 centimeter with the longitudinal lie. Breech presentation, Likert seems to be adequate. हम्म Fetal heart of 44 beats per minute. Lab shows uh, anemia. ठीक है एनीमिया का आपने ठीक है अब ये जो आपने मुझे जो हिस्ट्री पॉइंट बताया था शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड इजी फैटिगेबिलिटी एंड ऑल दैट Yes, इसकी ma'am. ड्यूरेशन क्या थी Ma'am, it started in her 6 month of gestation, second trimester. second Same. trimester so it was pre-existent before that episode of vaginal bleeding ऐसा ही है ना
Yes, ma'am, pre-existing था. हाँ, क्योंकि फिर उसमें जो कॉजेज हैं इस पेशेंट में, अब इसमें फाइनल डायग्नोसिस तो आपने बता दिया कि एनीमिया है, विजाइनल ब्लीडिंग है, एंटीपार्टम हेमरेज एंड हाइपरटेंशन, बट देन यू हैव टू डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ दिस, ठीक है ना, एनीमिया जो इसका प्री एग्जिस्टेंट था, क्योंकि अगर ये Yes, ma'am. इसको वैसे भी 1 वीक ड्यूरेशन की उसके साथ एकदम से सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, तो Yes. इसमें व्हाट डू यू थिंक मे बी द कॉज ऑफ एनीमिया इन दिस पेशेंट? And do you think these symptoms are really due to anemia? Suppose you have not got the report of hemoglobin in this patient. आपके पास Madam, hemoglobin की रिपोर्ट अभी नहीं है. Still you yes, have to ma'am. ask from the examiner. So based on Yes, history ma'am. alone, how you can classify these symptoms to be due to anemia only? Madam, yes, I can classify due because these symptoms are most probably due to anemia because my patient gives history of postpartum hemorrhage in her last pregnancy and she did not take Hmm. supplements after that. And she is multigravida. And in this Hmm. pregnancy, she did not take any hemodynamics and her diet is also Hmm. deficient. And she gives history of Hmm. pica intake in the form of mud. And so Hmm. these are the What so pica most does? of What pica anemia. does as a cause for anemia? Pica का रोल Ma'am, क्या होता है? ma'am, it is a non-substance food that interfere with absorption of iron. ठीक है, चले. And These are the factors leading to anemia. yes, लेकिन ma'am. what about the specific symptoms of anemia? ये वो फैक्टर हैं जो बेसिकली आप अपने डायग्नोसिस को रीइंफोर्स कर रहे हो बाय एडिशन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, कि ये वाली Yes, सारी ma'am. चीजें जिसमें इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीमिया इज मोर एज कंपेयर टू एनी अदर प्रॉब्लम. बट व्हाट Yes, अबाउट ma'am. द सिम्टम्स? यू हैव टू टॉक अबाउट द सिम्टम्स आल्सो. Yes, ma'am. Easy fatigability and lethargy. And I have also ruled out these symptoms can also be due to cardiac problem. But I have ruled out. My patient does not give any history of orthopnea, chest pain, bleached skin of lip, and any history of pedal. So least likely that she's suffering from any cardiac problem or any chest problems. And she did not give me any history of productive cough, asthma, and dyspnea. या मतलब इन पॉइंट्स पे ये तो एक बाय द वे क्वेश्चन था, लेकिन इन पॉइंट्स पे आके आपको बेसिकली क्लियरली आपको यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सिम्टम्स ऑफ कार्डियक डिजीज एंड ऑफ दैट ऑफ अनीमिया या इवन द Yes. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. व्हाई हर रेस्पिरेशन रेट इज 24? इज इट नॉर्मल? आपने मुझे Uh, 24 बताया. yes, ma'am. 24. हम्म. मैम स्लाइटली थोड़ा सा मैम ज्यादा है इसका रेस्पिरेटरी रेट हम्म. तो ट्वेंटी क्यों है? फोर मैम इट कैन बी ड्यू टू एनीमिया. इसमें पल्स रेट तो नहीं बढ़ा, वो आपने 89 बताया. यस मैम. अमूमन मैम रेस्पिरेशन रेट का इंक्रीज और हार्ट रेट का इंक्रीज गो साइड बाय साइड. यस मैम. पल्स रेट इज नॉर्मल अकॉर्डिंग टू, यस. इफ ये इसको प्रेगनेंसी के हिसाब से तो हम नॉर्मली समझेंगे. और रेस्पिरेशन रेट आपने काफी ज्यादा बता दी है. नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना होता है? मैम 20 ब्रेथ्स पर मिनट 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट. हम्म. ठीक है, तो इसमें और क्या वजह हो सकती है? Ma'am, at the when I was doing her examination, patient has also one episode of cough. When I take detailed history of my patient, she refused totally that मुझे तो कोई I don't have cough or any productive cough and fever or any history of like that. Maybe she is having the ma'am कोई lower respiratory tract infection or upper respiratory tract infection. That's why she's maybe slightly dyspneic. But on examination, on auscultation, I didn't find any positive finding. But she has, at the time of examination, she has cough, one episode of cough. ठीक है, चलो. अब इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं. अब इसमें इसका वर्कअप क्या क्या करवाओगे? आपने हीमोग्लोबिन के मुताबिक कहा कि ये एनीमिया है, बट Yes, व्हाट हाउ यू विल एवेल्युएट दिस पर्सन फर्दर? ये 34 वीक्स पे आ गई, 34 नहीं बल्कि 9 मंथ्स हम इसको कहेंगे, और विद ऑल दीज सिम्टम्स एंड साइंस और सारे जो जो प्रॉब्लम्स हैं, बट व्हाट विल बी द ऑनवर्ड एवेल्युएशन इन दिस पेशेंट? madam, blood group and Irish factor. He doesn't know it beforehand. Yes, ma'am, her blood group is A positive. A positive.
अमूमन जो मल्टी पैरा हो उनको पता होता है ये अपने ब्लड ग्रुप का, ठीक है। और मैम प्री ट्रांसफ्यूजन HB in gram per deciliter, हम्म total count, platelet count, and madam RBC indices, peripheral हम्म smear, serum हम्म, ferritin. ठीक है। और And madam, for the workup of anemia, I will go for these investigations. व्हाट एल्स? और इसके अलावा इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? मैम anemia की या दूसरी investigations आप पूछ रही हैं? मैम जी, मैम ब्लड शुगर रैंडम, यूरिन आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। हाँ जी, बताएं। Madam, urine complete examination for microscopy and biochemistry, blood sugar ठीक random, है। hepatitis B हम्म sufficient, anti-HCV antibody status, COVID PCR. ब्लड शुगर लेवल रैंडम की क्या सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है? Ma'am, it has a specificity of 60%. अच्छा, तो रैंडम से आपको क्या? रैंडम मीन्स रैंडम, किसी भी वक्त, किसी भी, चाहे मरीज ने भी 1 घंटा पहले ही खाना खाया हो। सो दिस इज क्वाइट मिसलीडिंग एट टाइम्स। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा और? Ma'am, I need her LFTs in which I need serum LFTs, हम्म alanine transferase, aspartate transaminase, serum uric acid, हम्म blood, yeah, serum cret. सीरम यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन। एंड व्हाई यू Cret, वांट टू डू दिस टेस्ट, LFTs because और सीरम यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन? madam, my patient is having a hypertension. My patient is presented with hypertension in pregnancy. I want to do her pregnancy-induced hypertension preeclampsia profile to rule out preeclampsia. हम्म That ठीक I है। will go test. ठीक, और? And madam, I will and then ma'am scan, dating scan for the duration to confirm duration of pregnancy, number of fetuses and fetal viability, anomaly scan for placenta localization and rule out any gross anomalies, and madam recent scan for fetal biometry, lie presentation, amount of liquor, estimated fetal weight, placenta localization. अच्छा, आपके पास कौन कौन से टेस्टों की रिपोर्टें इसकी अवेलेबल थी आउट ऑफ ऑल दिस इन्वेस्टिगेशन व्हिच यू हैव जस्ट टोल्ड मी? मैम इसकी HB की रिपोर्ट अवेलेबल थी, प्री ट्रांसफ्यूजन HB पेशेंट की 6.7 थी, हम्म एंड मैडम लेकिन इसका वर्कअप एनीमिया का नहीं हुआ था, MCV ठीक है, MCC was not available, peripheral smear was also not available, ठीक है। and BC and COVID PCR negative, urine complete clear, and हम्म जो pH पे मैम वो भी सारी नॉर्मल थी पेशेंट की. ठीक है। चलें फिर आप इसके मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। तो सिर्फ जी, मैम स्कैन सिर्फ इसका रिसेंट स्कैन था और उसके ऊपर इसके पैरामीटर्स आ रहे थे 35+6 वीक्स के पैरामीटर्स थे पेशेंट के. ठीक है। और प्लेसेंटल लोकेशन क्या थी उसमें? मैम प्लेसेंटा इसका इंटीरियर था. एंटीरियर, ठीक है। अपर सेगमेंट? यस मैम. मैम मैंने ओके। इसमें पूछना था कि हम पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन मांग सकते हैं एग्जामिनर से रूल आउट करने के लिए कि कोई लोकल कॉज तो नहीं थी इसकी ब्लीडिंग की, क्योंकि प्लेसेंटा तो मांग रूल सकते हैं आफ्टर मतलब लो लाइन प्ले, अगर ये लो लाइन प्लेसेंटा में भी कोई ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होती स्पेकुलम एग्जामिनेशन की, लेकिन प्लेसेंटल लोकेशन के बाद एंड वंस द ब्लीडिंग इज सेटल्ड तो उसमें आप स्पेकुलम एग्जामिनेशन मांग सकते हैं टू रूल आउट एनी लोकल कॉज। क्योंकि देखो अगर अपर सेगमेंट में प्लेसेंटा है और उसमें पेशेंट को ब्लीड हुआ तो उसमें कोई फ्रेश एब्रप्शन तो वैसे ही पता नहीं चलेगी, उसकी एकोजेनिसिटी जो है वो डिफरेंट नहीं होती फ्रॉम द प्लेसेंटल एकोजेनिसिटी इटसेल्फ, इसलिए उसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन कुछ फिर भी पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिससे हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि प्रोबेबली दिस केस कुड बी ड्यू टू प्लेसेंटल एब्रप्शन। कुछ चीजें होती हैं, कुछ फैक्टर्स ऑन एग्जामिनेशन एंड इवन ऑन अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, चाहे वो एकोजेनिसिटी हमें ना भी बताए, जिसमें अब नॉर्मल थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा, उसकी जो उसका जो मार्जिन है दैट इज अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, ये 2-3 चीजें होती हैं जिससे हमें अंदाजा हो सकता है कि ये प्रोबेबली दिस कुड बी अ केस ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन। लेकिन ये है कि अदरवाइज अगर ये सब चीजें ठीक हों तो डेफिनेटली यू हैव टू रूल आउट द लोकल कॉज एज वेल, तो वो आप बिल्कुल मांग सकते हो वंस द ब्लीडिंग हैज बीन सेटल्ड, उसको सेटल हुए 48 आवर्स हो जाएं तो फिर आपने इसमें ये मांगनी होती है।
चलें जी, अब इसकी मैनेजमेंट की तरफ आए। इसमें इसकी मैनेजमेंट आप अब कैसे करोगे? I will complete my pending investigation for typing of anemia. First, I will do the typing of anemia so that I can build up a HB. हम्म इसकी जो है जाहिर है उसमें आरबीसीज इंडिसेस वगैरह तो नहीं हुए और ना ही कोई सीरम फेरिटिन भी शायद नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ था। व्हाट डू यू थिंक व्हाट टाइप ऑफ अनीमिया इट कुड बी? On the basis of history, most विदाउट एनी likely, इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आपके पास नहीं है तो आपने अपनी प्रोबेबिलिटी बतानी होती है कि इसमें कौन से टाइप ऑफ अनीमिया होने के चांसेस ज्यादा हैं। on the basis of history, most probably as my patient is multigravida and she did not take hematotics and she's also give history of postpartum hemorrhage in a large pregnancy. She is suffering from iron deficiency anemia. ठीक है, ठीक है। न्यूट्रिशनल एनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑल ऑफ द एनीमियाज, तो वो उसमें इसके चांसेस ज्यादा होंगे। सो यू डोंट हैव द रिपोर्ट्स ऑफ आरबीसीज इंडिसेस एंड सीरम फेरिटिन, हाउ यू विल ट्रीट एनीमिया नाउ? आप इसकी ट्रीटमेंट कैसे करोगे? मैम एज में the 6.7 ग्राम एचपी, मैम इसकी मैं प्री ट्रांसफ्यूजन एचपी से चल रही हूँ, ऑल्दो इसके 2 ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गए हैं। मैं उस तरह से मैनेजमेंट डिस्कस करना चाह रही हूँ कि हम 6.7 से ही फॉरवर्ड कर आगे डिस्कस करें। चलो ठीक है, सपोज कि इसमें हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किए, ठीक है। हाँ जी, ब्लड ट्रांसफ्यूज इसमें नहीं हुए एंड हर हीमोग्लोबिन इज 6.7। यस मैम, मैडम तो एज माई आप पेशेंट, हीमोग्लोबिन को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे? मैडम एज माई पेशेंट इज 9 months and 6.7 gram HP and is also हम्म soda जी, rich. She's हाँ sick जी। at this time. I will transfuse her Paxil volume to relieve her till her symptoms are relieved. टिल हर सिम्टम्स आर रिलीव्ड। सिम्टम्स तो उसको इवन ये ब्लीडिंग एपिसोड होने से पहले भी थे, ठीक है। तो सिम्टम्स का रिलीफ होना तो प्रॉबेबली एक क्राइटेरिया ऐसा नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स तो जाहिर है बाद दफा प्रेगनेंसी की वजह से भी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनीमिया। सो Yes, ma'am. ये जो क्राइटेरिया है कि टिल द सिम्टम्स आर रिलीव्ड, वो थोड़ा सा वेग क्राइटेरिया होगा, इल डिफाइंड क्राइटेरिया। Yes, ma'am. तो इसमें आप इसको एग्जैक्टली डिफाइन करो कि सॉरी, आपने इसके हीमोग्लोबिन को, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप इसकी हीमोग्लोबिन कहां तक ले जाना चाह रहे हो, एंड फॉर दैट पर्पस Madam, हाउ मेनी ट्रांसफ्यूजन्स यू विल गिव टू दिस पेशेंट? madam, patient is at 9 months of gestation. She is multigravida and also is presented with one episode of antepartum hemorrhage. And at this time, her HB 7 gram per deciliter. I will transfuse her. I will transfuse her with the 2 Paxil volume, and her HB after that her HB become कितने 8. पैक्सल वॉल्यूम कितने? Ma'am 2, and after that her HB almost around 9 gram per deciliter हो जाएगी मैम पेशेंट की। 6.7 के ऊपर आप 2 पैक्सल लगाओगे तो डू यू एक्सपेक्ट इट टू बी रेज टू 9? मैम 8.7, सॉरी 8.71 ग्राम रेज होता है, ऐसे 8.7 ग्राम पर Sometimes not even sometimes not even possible to raise it to 8.9. इतनी exact mathematical calculation तो बहुत कम होती है, and it again depends upon many factors कि डोनर की Yes, हीमोग्लोबिन कितनी थी, पेशेंट का अपना बॉडी सरफेस एरिया कितना है, उसका बीएमआई कितना है। so many factors determine the raise of hemoglobin even after the blood transfusion. yes, तो ma'am. इसलिए ये इसमें एग्जैक्ट आपका ये होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि इसको, इसकी हीमोग्लोबिन को मैं 9 तक लेके जाऊंगी मिनिमम, Yes, ma'am. ठीक है, Minimum. 9 Yes. तक लेके जाऊंगी, जो कि रिलेटिवली एक सेफ हीमोग्लोबिन होगी फॉर दिस मल्टीग्रेविडा पेशेंट। और Yes, ma'am. उस 9 ग्राम हीमोग्लोबिन के लिए आपको कम से कम 3 पैक्ड सेल वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। Why packed cells? Why not whole blood? Because she has just blood. Because madam, my patient is having anemia and she can go into fluid overload, and she's already anemic and she can go into fluid overload. So that so avoiding that, I will transfuse her Paxil volume. ठीक है, चले अब इसको आपने 9 तक लेके जाना है और उसके लिए 3 पैक्सल। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? Madam, yes, you are right. 3 packs. We should give 3 Paxil volume, but madam, my patient exactly
बहुत ऑफेंड हो जाते हैं इतना ज्यादा ब्लड लगाने पे. दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस दिस केस एंड नहीं नहीं, आप देखो, आप इसको साइंटिफिक बेसिस पे आप डिस्कशन को चलाओगे, पेशेंट को आपने एक्सप्लेन करना है कि व्हाई दिस इज नीडेड, ठीक है. यस. अब इसमें और दूसरी बात ये कि अगर आप एक चीज बताते हो ट्रीटमेंट में, जो एग्जामिनर भी आपसे ले रहा होता है, तो उसको भी आपने बेसिकली ये गेम तो जस्टिफिकेशन की है सारी की, आपने जस्टिफाई करना है कि इसमें मिनिमम सेफ हीमोग्लोबिन लेवल कितना है. सेफ हीमोग्लोबिन लेवल बहुत जरूरी होता है अचीव करना, बिकॉज शी इज ऑलमोस्ट एट 35-36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, having a recent episode of vaginal bleeding and already having chronic anemia. उसमें ब्लीडिंग का एक एपिसोड हुआ, हाउ यू कैन बी सर्टेन दैट शी विल नॉट बी हैविंग एनी अदर एपिसोड ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग. तो इसलिए इसका कम से कम 9 तक पहुंचना जरूरी है. हम इसको 11 तक नहीं पहुंचा रहे, हम इसको सिर्फ सेफ लिमिट तक पहुंचा रहे हैं, दो इट इज नॉट दैट सेफ इन अदर वे. लेकिन कम से कम उस पर ये है कि शी कैन सस्टेन दैट अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग अगर इसको कोई और ऐसा एपिसोड होता है वेजाइनल ब्लीडिंग का. तो बिकॉज along with these 3 पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन, आप सिर्फ उसमें सिर्फ हीमोग्लोबिन ही नहीं ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, आप उसमें आयरन भी जा रहा है. तो वो जो आयरन होता है वो एक विनोफर इन्फ्यूजन के बराबर होता है, एक डोज के बराबर, जो एक पैक्ड सेल में या एक होल ब्लड में जो जा रहा होता है आयरन. ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस कि ब्लड लगाने का फायदा ये होता है इन लो हीमोग्लोबिन. दो आई एम नॉट वेरी प्रो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, उसमें बहुत हमें मिनिमम देना चाहिए बिकॉज ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेकिन पेशेंट की सेफ्टी काउंट्स फर्स्ट. और इसमें अगर आप फुली स्क्रीन और सारा ब्लड लगा देते हो और इलेक्टिवली ट्रांसफ्यूज करते हो तो इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन के रिस्क तो ज्यादा होते हैं, और बार दफा उसमें बहुत इमरजेंसी स्क्रीनिंग और क्रॉस मैचिंग के अपने एरर्स होते हैं. Because a full screening and grouping and cross matching does take 2 hours at least, जो कि बाद दफा इमरजेंसी सिचुएशंस में पॉसिबल नहीं होता. सो हमारा एम इसमें 9 तक होगा. एनीवन एल्स डिसएग्री विद दिस थिंग? अगर कोई और इस चीज से डिसएग्री करता है तो आपको इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेफिनेटली हो सकता है. नो मैम, अग्रीड, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ पीपीएच भी है इस पेशेंट को, तो ये लेबर में भी कभी जा सकता है. पहले भी हीमोग्लोबिन सिक्योर मौजूदा एपीएच भी इसको है, एंड शी इज क्रॉनिकली एनीमिक, और मल्टी ग्रेविडा भी है. मल्टी ग्रेविडास में ज्यादातर एटोनी, यूट्राइन एटोनी का फैक्टर आ जाता है जो मल्टी ग्रेविडा पेशेंट्स होती हैं. तो इसलिए वंस शी हैज हैड एन एपिसोड ऑफ पीपीएच, शी इज प्रीडिस्पोज्ड टू हैव इट अगेन. तो इस वजह से हमें कम से कम 3 ब्लड लगाने तो इसमें बहुत जरूरी हैं, जो 6.7 से 9 तक हमें चाहिए होंगे. ठीक है, एनीवन एल्स डिसएग्री? मैडम इसमें तो 9 पर क्यों हम 10 तक क्यों नहीं ले जा सकते मैडम? नहीं देखो, 9 कितने ज्यादा रिस्क फैक्टर है मैडम? 9 तक हम ले गए ना, अब उसके साथ जो हमने 3 विनोफर इन्फ्यूजन्स के बराबर जो आयरन उसके अंदर गया, बाकी के हीमोग्लोबिन उससे रेस हो जाएगी, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डिलीवर हर जस्ट नाउ अनलेस के इसमें कोई और ऐसी सिचुएशन अराइज कर जाती है. तो रेस्ट ऑफ द सिचुएशन जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है, दैट विल बी टेकन ओवर बाय दैट इन्फ्यूज्ड आयरन. इज इट क्लियर? एक तो हमने हीमोग्लोबिन को इमीडिएटली ऑप्टिमाइज कर दिया बाय गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ठीक है, वो इमीडिएटली हो गया. लेकिन डोंट फॉरगेट दैट विद ईच पैक्ड सेल वॉल्यूम और विद ईच 1 यूनिट ऑफ ब्लड यू आर ट्रांसफ्यूजिंग इन्फ्यूजिंग लेवल आयरन एज वेल. वो आरबीसीज में भी आयरन होता है और सीरम में भी आयरन होता है. तो ये जो आयरन होता है विद 1 यूनिट ऑफ ब्लड, ये तकरीबन 1 विनोफर की डोज के बराबर होता है, या यूं समझने के 200 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन के बराबर उसकी डोज होती है. तो इस वजह से जो है इसको हमें बाकी का जो काम है वो आयरन कर देगा. इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर. लेकिन मैम इसमें एक कंफ्यूजन थी, जैसे कि इसको हमने ट्रांसफ्यूज करके हीमोग्लोबिन 9 पे दिया, फिर इसको ये 3 डोज एज इनडायरेक्ट विनोफर भी लग गए, अब हमें इसका आयरन भी रेप्लेनिश करना है, तो फिर अब वो रेस्ट ऑफ द डोज कैसे कैलकुलेट करनी है? क्योंकि नॉर्मली हम तो प्री ट्रांसफ्यूजन का वो डोज फॉर्मूला लगा के वो कर देते हैं, फिर कैसे होगा? नहीं, बेसिकली जब हम इस चीज को भूल जाते हैं ना कि हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाई है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 9 तक ले जाओ और उसके बाद बाकी 3 डोजेज आयरन की दे दो.
ऐसा ही है ना, मूवमेंट तो ऐसे ही किया जाता है। Yes, ma'am. आई एम राइट और नॉट? Yes, ma'am, ऐसे ही होता है। Yes, ma'am. ऐसे ही ज्यादातर होता है। देखो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स मिल रही होती हैं, उनमें हम आयरन तो नहीं दे रहे होते, लेकिन आयरन ओवरडोज उनमें हो जाता है, इसी वजह से उनमें आयरन डिटॉक्सिफिकेशन करनी पड़ती है। तो सिमिलरली इज द केस विद एनी अदर पेशेंट हु रिसीव्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, कि अगर हमने फिर उसके बेसिकली फिर देन वी विल गो अकॉर्डिंग टू द सीरम फेरिटिन लेवल। ये जो 3 ब्लड इसको मिल गए, उसके बाद इफ वी हैव टू गो प्रिसाइजली अकॉर्डिंग टू द ब्लड आयरन लेवल्स, तो फिर हमें सीरम फेरिटिन के हिसाब से जाना पड़ेगा। एंड इन दैट केस इफ सीरम फेरिटिन विल बी लो लेस देन, इसको यूजुअली तो 30 से कहते हैं, लेकिन 15 इज द कट ऑफ लिमिट, जिससे नीचे हमें जरूरी होता है लगाना आयरन इन्फ्यूजन, बिकॉज ओरल आयरन कैन नॉट टेक अप दैट डेफिशिएंसी। तो इसलिए इसको फिर हम सीरम फेरिटिन के हिसाब से हम जा सकते हैं। बट इन दिस वे यू कैन डिस्कस कि हमने इसको 3 ट्रांसफ्यूजन दी और इसको हमने 9 तक पहुंचाया, और बाकी का काम जो है वो आयरन देगा, क्योंकि हमने मिनिमम ट्रांसफ्यूजन इसको देनी है till safe levels of hemoglobin are achieved because of the increased risk of blood transfusions which is associated with each blood unit. हर ब्लड यूनिट जो हम देते हैं उसके साथ एक अपना रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन है। ऐसा नहीं है कि हमने 3 ब्लड लगा दिए, 2 और लगा देंगे कुछ नहीं होगा, वरना तो हम इसको 11 तक भी ले जा सकते हैं, 2 और ब्लड लगा देंगे तो 11 तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए इसको हम कम से कम उतनी ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं जो कि सेफ्टी के हिसाब से उसमें जरूरी हैं, जिसमें अब इमीडिएटली हमने इसकी हीमोग्लोबिन 9 तक पहुंचा दी, बाकी का काम आयरन कर देगा, बट स्टिल वी विल हैव सम डोनर रेडी सो दैट इफ शी गेट्स अनदर एपिसोड ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज इमीडिएटली अ डे और 2, मतलब एक या 2 दिन के बाद अगर इसको कोई ऐसा स्वेयर हेमरेज का एपिसोड होता है, तो उस सूरत में हम उसको लगा सकते हैं। इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन की तो जगह हमेशा ही होती है इन दैट केस कि अगर उसको हम मतलब हो जाए तो आप उसको इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन कर दो। बट इलेक्टिवली हमने इसको 3 ब्लड लगाए, 9 तक हीमोग्लोबिन पहुंचाई, जो हम सपोज कर रहे हैं कि 9 तक पहुंच जाएगी, और मे बी कि ये 9 से ऊपर चली जाए, लेकिन हमारा जो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन रेट है इसमें वो 9 होगा। तो उसके बाद जो है वो आयरन ने बाकी काम टेक ओवर करना है। अब ये भी आपका क्वेश्चन वैलिड है कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि आयरन की कितनी को डोज और रिक्वायर्ड है। सो दैट यू कैन कैलकुलेट इट बाय हैविंग अ टेस्ट ऑफ सीरम फेरिटिन, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर सीरम फेरिटिन के हिसाब से आप जा सकते हो। अदरवाइज आपको रफली पता है कि एक पैक्ड सेल में कितना आयरन अंदर जाएगा, और वो तो आपने इन्फ्यूज कर ही दिया उसमें अलॉन्ग विद द हीमोग्लोबिन। मैम अगर सपोज इसका हम लोग डोज कैलकुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, और वो 6 आयरन ड्रिप्स बने जा रहा है, तो 3 हम कहेंगे कि इनडायरेक्टली चली गई एंड 3 मोर, इस तरीके से लेकिन ना भूलें कि आप सिर्फ आयरन नहीं दे रहे, आपने हीमोग्लोबिन भी दे दी। Yes, तो सिर्फ आपने वो सिर्फ टोटल आयरन इन्फ्यूजन्स कैलकुलेट की थी, वो उसमें हीमोग्लोबिन वाली बात कहीं नहीं थी। बाय गिविंग ब्लड यू आर डीलिंग इट विद 2 वे, एक तो हीमोग्लोबिन आपने इन्फ्यूज की और एक आयरन इन्फ्यूज किया, तो ये 2 चीजें अंदर गई हैं। आयरन इन्फ्यूजन जब आप देते हैं तो सिर्फ आयरन जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं जा रही होती। तो इसलिए उसका जो हीमोग्लोबिन जो रेस कर रही है वो तो 2 वे रेस कर रही है। आयरन एक पैसिवली उस पे पैसिव एजेंट के तौर पे काम करेगा, और इमीडिएट उसमें जो हीमोग्लोबिन रिस्टोर होगी दैट विल बी बाय आरबीसीज व्हिच आर बीइंग इन्फ्यूज्ड विद पैक्ड सेल और होल ब्लड, ठीक है। हेलो मैडम, जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, निकालेंगे वो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन से बता सकते हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा बिल्कुल। मैम जब हमें आयरन देना है, हाँ ट्रांसफ्यूजन के हिसाब से कर सकते हैं। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं, बीच में टूट बहुत रही है, वो पूरा सेंटेंस नहीं मुझे समझ आ रहा। कोई और इनकी जगह क्वेश्चन कर ले जो ये बताना चाह रही है। हेलो मैडम, एक क्वेश्चन पूछूं? जी जी पूछिए। Ma'am, as in this case, there is also one episode of appendix per vaginal bleeding in third trimester. So this may be a case of placenta previa, and the target level of hemoglobin in that case
is 11 ग्राम पर डेसीलीटर। तो फिर मैम हम कैसे पहले हम प्लेसेंटल लोकलाइजेशन ना अगर करें तो देखो, जब आप मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त तक आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पता चल चुकी होती है। और अगर हम ये सपोज करें कि ये लो लाइंग प्लेसेंटा है, तो डेफिनेटली द सिनेरियो विल बी चेंज्ड, ऑल टुगेदर विल बी चेंज्ड। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया में एज कंपेयर टू अपर सेगमेंट प्लेसेंटा जो है, ब्लीडिंग ज्यादा हैवी होती है, पीपीएच के चांसेस ज्यादा होते हैं, एंड एनी टाइम द पेशेंट कैन ब्लीड हैवीली। वहां पे सिनेरियो फर्क होगा, वहां पे आपने ब्लड के साथ इसकी हीमोग्लोबिन 10+ तक लेके जानी है। ठीक है, उसमें उसमें फिर ये वाली चीज नहीं होगी, ये हम डिस्कस कर रहे हैं व्हेन द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इन द अपर सेगमेंट। बाद दफा ऐसे भी होता है कि उसका मार्जिन ब्लीड कर रहा होता है, एंड एक्चुअली इट्स नॉट अ केस ऑफ एब्रप्शन प्लेसेंटा इन ट्रू सेंस। तो इसलिए ये उस सूरत में, प्लेसेंटा प्रीविया की सूरत में, आप इसको 10+ तक लेके जाओगे विद ब्लड, नॉट ओनली विद आयरन, क्योंकि आयरन डज टेक टाइम। और जब वार्निंग हेमरेजेस शुरू हो जाते हैं इन केसेस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, तो फिर आपको ऑल द टाइम हीमोग्लोबिन ऑप्टिमाइज रखनी पड़ती है, और 10+ प्रेफरेबली शुड बी अराउंड 11। और उसके साथ साथ आपने स्टैंड बाय ब्लड भी रखना होता है इन केस इफ यू हैव टू गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। उस वक्त देयर विल बी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट गोइंग इनटू पीपीएच while she had this episode in the previous birth also। तो वहां पे तो सिनेरियो ही फर्क चेंज हो, वो सारा चेंज हो जाएगा। ठीक है मैडम, थैंक यू। ठीक है मैम, ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुई जो आपने कहा कि प्री ट्रांसफ्यूजन, अगर अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि 6 आयरन इन्फ्यूजन का डोज निकलता है तो फिर हम 3 लगाएंगे या 6 लगाएंगे, तो मैम ये प्लीज क्लियर कर दें, कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुई है। इसमें क्या चीज क्लियर नहीं हुई? मैम अगर सपोज हम इसको ब्लड नहीं लगाते, सपोज ये पेशेंट है 24 वीक्स पे, हम इसको ब्लड नहीं लगाते, ठीक है, तो इसमें आपने कैलकुलेट की आयरन इन्फ्यूजन, और आपकी टारगेट हीमोग्लोबिन भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टारगेट हीमोग्लोबिन टू बी अचीव जब आप आयरन डोज कैलकुलेट करते हैं। तो टारगेट हीमोग्लोबिन इज ऑलवेज एट अराउंड 11 जब भी आपने अनीमिया को ट्रीट करना होता है और आयरन इन्फ्यूजन देनी होती है। लेकिन जब आपने उसके हिसाब से आपने उसकी डोज को कैलकुलेट करना होता है, सपोज आपने इसकी 6 आयरन डोजेज जो है वो कैलकुलेट की। अब इसमें ये चीज फिर होगी कि इसमें आपने वो आयरन इन्फ्यूजन जो है वो पर डोज कितना आयरन लगाना है, कितने इंटरवल से लगाना है, कितने अरसे में लगाना है, ये वाली चीज एक होगी, दैट इज एट वन साइड। अब हम आते हैं इस केस की तरफ जो कि क्रॉनिकली एनीमिया है, प्रीवियस पीपीएच, मौजूदा एपीएच। तो उस सूरत में इसमें 6.7 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब ये जो पेशेंट, इसका जो सिनेरियो है, इसमें हम खाली आयरन पे डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज द पेशेंट इज इन एडवांस्ड जेस्टेशन, presently having a problem of APH just 1 week back और past episode of PPH। तो इसमें तो किसी भी वक्त ब्लीडिंग दोबारा हो सकती है। इसमें जो मेरी जो इसमें सजेशन थी कि उसमें जब हम ब्लड की बात करते हैं तो उसमें सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी कम्स फर्स्ट। अब प्लेसेंटा प्रीविया में जो है वो एक एज अ रूल यू हैव टू ऑप्टिमाइज हीमोग्लोबिन एट ऑल टाइम्स एंड इट शुड बी मिनिमम 11, ताकि वो जो पीपीएच में पेशेंट जाता है, हम तो हिस्टेक्टमी तक की कंसेंट लेते हैं फॉर मेजर प्लेसेंटा प्रीविया बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसीलिए ली जाती है कि उसमें इतना ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए उसकी हीमोग्लोबिन को एट ऑल टाइम्स 11 होना चाहिए, और वो इमीडिएटली जो हमने बिल्डअप करना होता है दैट इज पॉसिबल ओनली विद द ब्लड, नॉट विद द आयरन, बिकॉज आयरन विल टेक सम टाइम, मिनिमम इट विल टेक 2 वीक्स, और हो सकता है हम 2 वीक्स में बहुत कुछ हो जाए, उसमें पेशेंट का हमें सेक्शन भी करना पड़ जाए, उसकी हिस्टेक्टमी भी हो, अगर ये प्लेसेंटा प्रीविया का केस हो तो। But as in this case, placenta previa has been ruled out and it is located in the upper uterine segment and bleeding so far is settled, which she had an episode 1 week back. लेकिन हमने इसकी हीमोग्लोबिन को ऑप्टिमाइज करना है। अब इसमें ये चीज नहीं है कि मैंने 9 बता दिया है तो वो हरफे आखिर है। आप इसको 10 तक ले जाके अगर जस्टिफाई कर सकते हो तो जरूर कर दो। इस पेशेंट मैं ये कहना पूछना चाह रही हूँ कि 3 ब्लड तो हमने लगा दिए इनको, लेकिन जो हम स्टोर रिस्टोर करते हैं ना, आयरन स्टोर्स को हम स्टोर करने के लिए आयरन फ्यूजन लगाते हैं,
ठीक है। उसका मैं पूछना चाह रही थी कि अगर 6 निकलता है तो उसमें जैसे आपने कहा कि इसमें मतलब आप ये कि आप 6 आयरन के साथ इस मैनेजमेंट को कंपेयर करना चाह रहे हो। अब इसमें मेरा ये जो मैंने पहले भी बात की है कि 3 ब्लड जब आपने लगा दिए इसमें, तो वो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि उसमें 3 आयरन डोजेस के बराबर चली गई, ऐसा ही है ना? तो आपका सवाल ये है कि क्या हमें 3 आयरन इन्फ्यूजन और लगानी चाहिए, यही है ना सवाल आपका? जी मैम, जी यही है ना? लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 3 आयरन इन्फ्यूजन की डोज के बराबर आयरन चला गया इन 3 पैक्ड सेल वॉल्यूम के साथ, तो आप ये क्यों भूल रहे हैं कि उन 3 पैक्ड सेल वॉल्यूम के साथ आरबीसीज भी तो आपने डाल दी हैं, विच इज इन एडिशन टू दैट 3 आयरन इन्फ्यूजन्स। अंडरस्टूड और नॉट? देखो इसमें आपको 3 जो बाकी रह गई जो डोज कैलकुलेट हुई थी वो आयरन की इन्फ्यूजन आपने अभी तक नहीं दी, ऐसा ही है ना? और 3 आयरन की डोज के बराबर चली गई। लेकिन वो जो एडिशनल आरबीसीज हमने इन्फ्यूज किए हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम की सूरत में, आप उसको जो है वो भूल रहे हो कि उन्होंने उन 3 आयरन डोजेस के बराबर हीमोग्लोबिन रेज कर दी उन 3 पैक्ड सेल वॉल्यूम में। इज इट क्लियर? हेलो जी जी मैम, इसमें अगर हम ये कहें कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारा प्री ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन 6 है, तो अगर हम इसमें एक ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दें टू रिलीव द सिम्टम्स, और उसके बाद अगर हम फेरी इंजेक्ट लगा दें 2 एम्प्यूल्स 100 ml नॉर्मल सलाइन देखो में, इसमें बहुत सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो, बहुत सारी ऑप्शंस डिस्कस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपने ये देखना होता है कि सेफ्टी क्या है। सेफ्टी इसमें ये है कि खाली एक ब्लड लगाने से पेशेंट की हीमोग्लोबिन सेफ लिमिट तक नहीं होगी, वो ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत भी अच्छी रेस हो तो 7.5 तक चली जाएगी। अब ये पेशेंट जिसको एपीएच हो गया और जो 35 प्लस वीक्स पे है, 36 तो इसकी फंडल हाइट है, तो हम इसको 35-36 वाली ही लेबल करेंगे, और मल्टी ग्रेविडा है, मे बी वो 37 वीक्स पे लेबर में चली ही जाए, तो ये उसकी चांसेस उसके हैं। तो अब ऐसा पेशेंट जिसके डिलीवरी जिसके लेबर में जाने के चांसेस आफ्टर 1 वीक पॉसिबल हो सकते हैं, और एनीमिया में प्री टर्म लेबर के भी चांसेस होते हैं, ये आपको पता है ना? जी जी एनीमिया में प्री टर्म लेबर के भी चांसेस होते हैं, और उसमें एक दफा एपिसोड हो गया वेजाइनल ब्लीडिंग का और पिछली दफा पीपीएच हो, तो हम उसको 7.5 हीमोग्लोबिन के साथ कैरी नहीं कर सकते, दैट विल बी एन अनसेफ लिमिट, तो अनसेफ हो जाएगी। इसलिए खाली एक ब्लड लगाने से काम नहीं चलेगा, इसको कम से कम आप आगे लेके जाओगे, ठीक है? अब फर्ज किया इस पेशेंट में कुछ भी ना होता, सिर्फ 8 हीमोग्लोबिन होती, सिर्फ इसको एनीमिया होता, तो उसपे तो हमें ब्लड लगाने की जरूरत ही नहीं थी, कि पहले भी उसको पीपीएच ना हुआ होता, और हो सकता है उसको पिछली प्रेगनेंसी में भी एनीमिया हो, और या फिर एनीमिया पीपीएच के बाद से चलता आ रहा है जो करेक्ट नहीं हुआ। तो लेकिन इसमें एडिशनल रिस्क फैक्टर हो गए मौजूदा एपीएच, लास्ट पीपीएच, और अभी का जो है ये एडवांस्ड जेस्टेशन। तो अगर ये पेशेंट में ये वाली सिम्टम्स ना होते, या खाली सिर्फ 35 वीक्स पे होती और उसका एनीमिया होता 8, तो हमें जरूरत ही नहीं थी ब्लड लगाने की, फिर हम इसको आयरन लगा के भी काम चला सकते थे, अलबत्ता ब्लड जरूर रेडी रखते कि अगर पीपीएच हुआ तो हम उस वक्त उसको लगा देंगे। तो इसलिए जो है वो इसमें जो है वो इसको हमें इस तरीके से डील करना पड़ेगा। दैट इज वाई देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आपने हर पेशेंट के उसके इंडिविजुअल क्राइटेरिया के मुताबिक चलना होता है। तो यही पेशेंट, इसीलिए मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करके बता रही हूँ कि ये पेशेंट में अगर ये वाली सारी चीजें ना हो, 8 हो, तो फिर हमने इसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है। तो मैम ये पेशेंट 35 होगा वीक्स है, लाइक ये पेशेंट 35 वीक्स पे है, ऑलरेडी एक एपीएच भी हो चुका है, जिसकी वजह से ये हाई रिस्क पे है प्री टर्म लेबर में जाने के लिए, तो इसलिए हम इसको फौरन बिल्डअप करना चाह रहे हैं इसका हीमोग्लोबिन सेफ लेवल तक, ताकि कभी भी जाए तो पीपीएच में एंड अप ना हो। हाँ ठीक है, तो चांसेस है ना 100%, ऐसा तो नहीं है कि लेबर शुरू होगी। अलबत्ता अगर फर्ज किया ये लेबर में चली जाती है सपोज आफ्टर 2 to 3 days, तो हमने अभी तो देखो हमने इसको ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, और ट्रांसफ्यूज हम डेली बेसिस पे नहीं कर रहे होते, ट्रांसफ्यूजन के लिए भी आप उसको थोड़ा सा इंटरवल टाइम देते हैं, और वो ज्यादा सेफ इंटरवल टाइम ये होता है कि आप इसको अल्टरनेट डेज पे ट्रांसफ्यूज करें, तो कम से कम हफ्ता तो लग जाएगा इसको ये 3 ट्रांसफ्यूजन देने में ही। सपोज आज इसकी हमने एचबी करवाई और 6.7 आई है, तो एक हफ्ता तो इसी में गुजर जाएगा, और सपोज एक हफ्ते के बाद ये लेबर में चली जाती है, तो देयर इज ऑल द टाइम यू कैन गो फॉर इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन। अगर इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन वर्सेस सिलेक्टिव ट्रांसफ्यूजन
उसके रिस्क में फर्क होता है, कॉम्प्लिकेशन में फर्क होता है। लेकिन अगर वो फुली क्रॉस मैच स्क्रीन ब्लड हो तो उसमें फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन रिस्क मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है मैम, सही है। अभी थैंक यू भी मैम। क्लियर है या नहीं? जी जी मैम, Yes, अब ma'am. समझ आ गई। एक ब्लड से कितनी आयरन कितना रेज है, एक यूनिट ऑफ ब्लड से कितना रेज होता है एचबी? देखो वैसे तो ये डिपेंड करता है 0.8 to 1, लेकिन इस पे बहुत सारे डिटर्मिनिंग फैक्टर होते हैं। पेशेंट का अगर बीएमआई बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ये हो सकता है 0.8 से भी कम डेज हो। तो ये बहुत सारे डिटर्मिनिंग फैक्टर होते हैं। और फिर जो डोनर ब्लड है उसकी अपनी हीमोग्लोबिन कितनी है, वो भी एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं वो उसकी थोड़ा सा वेरिएबल, ये कोई स्टैटिक रेट नहीं होता कि हर ट्रांसफ्यूजन के बाद जरूरी 1 या 0.8 होगा। हम तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि हर एक ट्रांसफ्यूजन के साथ जनरली जो एक स्टैंडर्ड के तौर पे जो समझा जाता है वो 0.8 रेज होता है पर ट्रांसफ्यूजन। तो लेकिन ये फर्क भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है और ये कम भी हो सकता है। चलें जी, मेरा ख्याल है अब इससे मैनेजमेंट को किसी एंड तक पहुंचाएं। मैम इसका करें नेक्स्ट मैनेजमेंट। हाँ जी जी जी, मेरा ख्याल है नीमिया का तुमने काफी एट लेंथ डिस्कस कर लिया इसको। Yes, ma'am. Ma'am, after typing and building up, I will counsel a patient that she's at that time that she's having the three issues that she has suffered from antepartum hemorrhage and anemia that has been built up and pregnancy-induced hypertension and breech presentation. Madam, as my patient is 36 weeks of gestation and she is having the pregnancy-induced hypertension that is controlled on antihypertensive medication and time her HP is after build up ma'am as 9 gram per deciliter and breech presentation and she's multigravida. Madam, I will go for elective cesarean section after 37 complete weeks of gestation. क्या, सॉरी दोबारा से बताएं। Ma'am, I will, ma'am, mode of delivery, ma'am, I will go for elective cesarean section after 37 completed weeks of gestation. आफ्टर taking 37 तो 41 वीक तक का टाइम पीरियड होता है, तो आप कब इसको करना चाहोगे? Ma'am, 37, ma'am, just 30 after 37 weeks. नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना, आफ्टर 37 तो फिर 41 वीक्स तक का टाइम पीरियड आता है। विल यू डू इट एग्जैक्टली एट 37 कंप्लीटेड वीक्स? Ma'am, at 37 completed weeks. व्हाई एट 37 वीक्स? Because madam, my patient is having the pregnancy-induced hypertension that is controlled in antihypertensive medication. She can go to preeclampsia at any time. She can develop, and already she is having the APH episode. She can develop abruption, and so that she can develop intrauterine death. So I will once her HB is built up, and I will go for elective cesarean section at 37 completed weeks. And steroid cover has also been given to my patient. The lung maturity has been up to the optimized level. So at 37 completed weeks, I will do her elective cesarean section. With BPLS at 37 वीक्स पे मेरी थोड़ी रिजर्वेशन है। और सेकेंडली दूसरी चीज ये है कि इसमें इस पेशेंट में क्या सिजेरियन सेक्शन मैंडेटरी है? Madam, although it is not mandatory, but my patient always be delivered by cesarean section. Madam, is not always be delivered by cesarean section. It can also be delivered vaginally, but the morbidity is high during vaginal delivery. 4 times morbidity is high during vaginal delivery. So, as a safe situation, I will do her cesarean section. Why don't you offer her external cephalic version? Is there a role in this case? No, madam, in this as my patient is having the one episode of APH, any patient who is having the hemorrhage, this is a no indication of external cephalic version. So this is not suitable for this patient. According to you, the fetal weight as on estimated clinically is आपने 2.3 to 2.5 kg बताया, अगर ये बहुत नैरो रेंज हो जाती है on clinical estimation, but anyway it's up to 2.5 kg, ऐसा ही है ना? Yes, ma'am, ऐसा ही है. So still you will like to deliver her by cesarean section? Yes, madam, I want to, due to her breech presentation, I want to deliver her by cesarean section. Because the vaginal delivery, there is a morbidity, 4 times high morbidity as compared to elective cesarean section. मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था कि ईसीवी के लिए जो आप कह रही थी कि ईसीवी हम लोग ऑफर कर सकते हैं पेशेंट में, पेशेंट नहीं, बट नॉट इन दिस केस। वो अफशी ने आंसर सही कर दिया कि इन केसेस ऑफ एपीएच यू शुड नॉट ऑफर हर। मैडम वो तो इसका एपीएच ना हुआ तो फिर आप कर सकते थे। अच्छा,
मैडम इसमें स्पॉन्टेनियस वर्जन भी तो हो सकती है। हाँ हो तो सकती है, लेकिन वही बात है ना कि हम उस सूरत हम ये इस सिनेरियो में डिस्कस कर रहे हैं कि ये परसिस्टेंट ब्रीच चल रही है, ठीक है ना, कि उस सूरत में होगा। अब स्पॉन्टेनियस वर्जन पॉसिबिलिटीज तो आर 101, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, आप हर पॉसिबिलिटी को डिस्कस नहीं कर रहे होते, लेकिन ये जो ब्रीच जो अभी तक है 35 वीक्स तक उसकी ब्रीच चलती आ रही है, हाइपरटेंशन है उसके साथ, ठीक है, जो कंट्रोल्ड ऑन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, और इसलिए जो ब्रीच जिसके साथ हाइपरटेंशन हो, एपीएच हो, उसमें इसीलिए ये मैं पॉसिबिलिटीज इनसे पूछ रही थी। जरूरी नहीं होता कि एग्जामिनर जो सवाल पूछे उसका मतलब है कि वो वही सही आंसर होगा, बाद दफा वो आपको रीचेक करने के लिए उल्टा सवाल पूछ रहा होता है। तो ये नहीं है कि अगर ये मैं कह रही हूँ कि इसमें वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है कि नहीं है, तो इनका आंसर जो है वो थोड़ा सा बुकिश नॉलेज पे तो बेस्ड था, लेकिन प्रैक्टिकली जो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स प्रैक्टिकल सिनेरियो जो होता है, आपने अपना आंसर उस पर बेस करना होता है कि इस मरीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से, क्योंकि हमारा देखो हमारा बहुत ज्यादा जो कोर ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है टू मिनिमाइज सिजेरियन सेक्शन रेट एज वेल। अब जिस मुल्क में पेरीनेटल मोर्टेलिटी इज ऑलरेडी स्काई हाई, वहां पे आप सिर्फ एक ब्रीच के लिए सेक्शन करके उसमें पेरीनेटल मोर्टेलिटी जिन मुल्कों में बहुत कम होती है, वहां तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इशू होता है कि पेरीनेटल मोर्टेलिटी ना बढ़ जाए ब्रीच डिलीवरी से, वहां तो ये चीजें एप्लीकेबल हैं। बट इन आर कंट्री जो है वो हमें फिर थोड़ा सा ब्रीच डिलीवरी की तरफ भी जाना चाहिए। बट इन दिस केस विद दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, when she is hypertensive and controlled on antihypertensive, when she had an episode of vaginal bleeding, अगर जो उसका ब्रीच डिलीवरी के साथ बहुत ज्यादा लिंक नहीं है, ब्रीच डिलीवरी का हाइपरटेंशन के साथ ज्यादा होगा ताल्लुक, क्योंकि उस सूरत में पेरीनेटल मोर्टेलिटी विल अगेन बी मोर रेज्ड एज कंपेयर टू अ जनरल पॉपुलेशन। तो इस वजह से इसमें इनको अपना आंसर बेस करना चाहिए इन पर्सपेक्टिव ऑफ द पेशेंट सिनेरियो रादर देन ऑन बुकिश नॉलेज। मैम लेकिन हम इसमें कोई स्पॉन्टेनियस भी तो लेबर में भेज सकते थे, मल्टी ग्रेविडा है, ब्रीच डिलीवरी हो नहीं जाती है। वही तो हम बात कर रहे हैं ना, वही तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें एसपीटी पॉसिबल है या नहीं है। और अगर हमने ये डिसाइड कर लिया है, एक मिनट मेरी बात सुने, जब हमने अगर डिसाइड कर लिया बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ द पेशेंट कि इसमें ट्रायल देना बहुत अनसेफ है, तो उस सूरत में तो हमने इलेक्टिवली सेक्शन करना है। अब ये पेशेंट जो हाइपरटेंसिव है, कंट्रोल्ड ऑन एंटी हाइपरटेंसिव है, उसमें हम 38 वीक्स तक जा सकते हैं। 37 वीक्स पे मैं एग्री नहीं करती। 38 वीक्स उससे भी ऊपर अगर 2-4 दिन चले जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोवाइडेड हर ब्लड प्रेशर रिमेन्स ओके, क्योंकि अभी तक नो फीटल कॉम्प्लिकेशन हैज बीन आइडेंटिफाइड। जैसे फंडल हाइट जो है वो 36 वीक्स है और अल्ट्रासाउंड पे भी कोई ऐसी फीटल कॉम्प्लिकेशन आइडेंटिफाई नहीं हुई। सो एवरीथिंग इज गोइंग ओके फीटल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें जो है वो आप इसको ले जा सकते हो 38 वीक 39 वीक्स के दरमियान तक भी, लेकिन कम से कम 38 कंप्लीटेड वीक्स तो जरूर हों। तो उसमें स्पॉन्टेनियस लेबर में हमने जाने देना है या नहीं जाने देना, इलेक्टिव सेक्शन करना है, ये अब डिस्कशन इस पे होगी। जो मैं इनसे ये पूछ रही थी कि हम इसको डिलीवर क्यों नहीं करा सकते, ईसीवी का तो इन्होंने आंसर कर दिया, बीच आई एग्री विद कि एपीएच की मौजूदगी में हम ईसीवी इसको ऑफर नहीं करेंगे। तो डिस्कशन फिर पीछे रह जाती है बिटवीन एसवीडी एंड इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। तो ये हम अब डिस्कस कर रहे हैं। Madam, due to the risk factor, previous episode, antepartum hemorrhage, multigravida and the history of anemia, मैडम इनके तो spontaneous labor में जाने के chances बहुत ज्यादा है और पेशेंट पेशेंट स्कोर भी ज्यादा है। वो ना भी रिस्क फैक्टर होता तो भी इसके जाने के चांसेस थे कि शी इज मल्टी ग्रेविडा। वो अगर ना भी ये रिस्क फैक्टर होते फिर भी। लेकिन मेरी जो बात आप समझ नहीं रहे हो कि हम स्पॉन्टेनियस लेबर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर की बात नहीं कर रहे, हम मोड ऑफ डिलीवरी की इस वक्त बात कर रहे हैं। अगर मोड ऑफ डिलीवरी हमने डिसाइड कर लिया कि इसको हमने वेजाइनल डिलीवर करना है, तो स्पॉन्टेनियस लेबर के साथ हम इसको वेट करेंगे, फिर हम इसका इंतजार करेंगे, लेकिन हम इसको 39 वीक से हरगिज भी आगे नहीं जाने देंगे। बिकॉज डोंट फॉरगेट दैट शी इज हाइपरटेंसिव एंड कंट्रोल्ड ऑन एंटी हाइपरटेंसिव।
अगर ये And we have हाइपरटेंशन ऑफ एंड ऑन होती है, हमें एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ना देनी पड़ती, तो फिर उस सूरत में हम इसको ले जा सकते थे 40 वीक्स तक, लेकिन नॉट इन दिस केस, जो कि कंट्रोल है ऑन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। मैम फिर ये डिस्कशन कर ले हम पेशेंट के साथ। ये डिस्कशन तो करोगे ही, लेकिन मरीज कहेगा मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ये तो जस्टिफाई तो आपने खुद करना होगा कि मरीज को भी आप जाहिर है कुछ फैक्ट्स बताओगे तो वो डिसाइड कर पाएगी। और बाद दफा पेशेंट्स आर नॉट एबल टू डिसाइड ऑन देयर ओन। अगर पेशेंट टोटली रिफ्यूज कर देती है, फर्ज किया सिजेरियन सेक्शन आपके ख्याल में ज्यादा बेहतर है, और पेशेंट रिफ्यूज कर देती है, तो डेफिनेटली यू आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर चॉइस एक्सेप्ट फॉर डिलीवरिंग हर वेजाइनली। और अगर उसमें कोई फीटल डिस्ट्रेस नहीं होता या और कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो मैम उस इस सूरत से में कह सकते थे ना कि हम आई विल वेट फॉर द स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर टिल 38 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एंड देन इफ द पेशेंट डजंट गो इन लेबर देन आई विल प्लान अ इलेक्टिव लोअर सेक्शन सेक्शन। नहीं, फिर उसमें एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछेगा क्यों इसमें इंडक्शन कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर आप स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर का वेट कर रहे हो और स्पॉन्टेनियस लेबर नहीं शुरू हुई, तो वो तो इंडिकेशन नहीं बन जाती सिजेरियन सेक्शन की। सिजेरियन सेक्शन सिर्फ इस वजह से तो नहीं किया जाता कि पेशेंट स्पॉन्टेनियस लेबर में नहीं गई। इफ यू हैव टू डिसाइड, इफ यू हैव डिसाइडेड हर टू डिलीवर वेजाइनली, तो स्पॉन्टेनियस लेबर नहीं शुरू हुई, तो उससे अगली चीज होती है इंडक्शन ऑफ लेबर। तो इसलिए जो है वो ये वाली बात नहीं बनेगी कि हम स्पॉन्टेनियस लेबर का वेट करेंगे, नहीं जाएगी तो हम सेक्शन कर देंगे, नो। लेकिन इस पेशेंट में जो है वो दोनों चीजें आप जस्टिफाई कर सकते हैं, इलेक्टिव सेक्शन भी और डिलीवरी भी। अब अगर आप फर्ज किया कहते हो, आप ये कहते हैं कि आई एम नॉट वेरी मच एक्सपर्ट टू डिलीवर हर एज ब्रीच, तो फिर तो किसी हद तक बात बन जाती है कि मुझे चूंकि बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है ब्रीच डिलीवरी कराने में, इस वजह से, या फिर अगर बेस्ड ऑन सर्टन अदर पैरामीटर्स लाइक अगर उसमें कोई उसका लाइकर वॉल्यूम कम हो जाता है, बेबी का वेट अगर ज्यादा होता है बाय दैट टाइम, तो उस सूरत में आप उसको जस्टिफाई तो कर सकते हो ब्रीच का सेक्शन करना। तो लेकिन और दूसरी चीज ये कि प्रेजेंस ऑफ हाइपरटेंशन इज अ रिलेटिवली रिस्क फैक्टर फॉर वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी, नॉट एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन इन दिस केस, लेकिन एक रिलेटिवली एडिशनल रिस्क फैक्टर हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ अ ब्रीच फीटस। क्योंकि ब्रीच फीटस जब डिलीवर होता है तो वो ज्यादा एट रिस्क होता है फॉर फीटल हाइपोक्सिया, और इन एडिशन टू दैट इफ शी हैज हाइपरटेंशन तो वो एक रिलेटिवली एक रिस्क फैक्टर उसमें एड अप हो जाएगा। लेकिन खाली इसके बेस पे हम ये नहीं कहेंगे कि हम इलेक्टिव सेक्शन कर देंगे। तो इलेक्टिव सेक्शन वर्सेस एसवीडी, दिस यू हैव टू जस्टिफाई इन योर एग्जाम कि इसमें आप क्या करोगे। समवन हु इज वेरी एक्सपर्ट एट डिलीवरिंग द फीटस एज ब्रीच, वो बिल्कुल इसको ब्रीच डिलीवर कर सकता है, लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है कि वो सिजेरियन करे। लेकिन हमारे सेटअप में हम नॉर्मल डिलीवरी को ज्यादा प्रोपेगेट करते हैं, प्रोवाइडेड कि हम उसमें फीटस को कॉम्प्रोमाइज ना करें एंड प्रोवाइडेड देयर इज नो मैटरनल सेफ्टी इश्यूज। लेकिन इसमें सिजेरियन सेक्शन रेट को मिनिमाइज करना हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। Madam, elective cesarean से morbidity to mother also increases as we give the scar to the mother. मैं कह रही हूँ ना, इसीलिए सेक्शन को जस्टिफाई करना या नॉर्मल डिलीवरी को जस्टिफाई करना, ये आपकी स्किल है। इम्तिहान में यही एक स्किल होती है कि आप अपनी मैनेजमेंट को कैसे जस्टिफाई करते हो, यही स्किल होती है जो आपकी असेस की जाती है। कोई इसका सेक्शन कर देगा, आप में से आधे लोग इसका सेक्शन करेंगे, आधे लोग इसकी डिलीवरी कर देंगे, दोनों पास हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने उसको अपने सिनेरियो के हिसाब से जस्टिफाई कर दिया। तो दोनों तरीकों से इसको मैनेज किया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते एब्सोल्युटली शी शुड बी डिलीवर्ड बाय सेक्शन और एब्सोल्युटली शी शुड बी डिलीवर्ड विजाइनली, ऐसा नहीं है। इसमें दोनों चीजों का स्कोप है। तो प्रोवाइडेड कि आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये सिर्फ जस्टिफिकेशन की गेम है, नथिंग एल्स। तो दोनों तरीकों से इसको डिलीवर कर सकते हो। और एक और चीज जो आप इसमें बार बार भूल रहे हैं वो ये कि पेशेंट ग्रेविडा 5 पैरा 4 है, आप सारे लाइव इसके इश्यूज हैं पहले, तो इसकी कॉन्ट्रासेप्शन को क्यों सारे भूल रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्शन का इश्यू हमने इसका एड्रेस करना है डेफिनेटली। जो इसका सिजेरियन सेक्शन करेंगे वो पहले से कंसेंट लेके सेक्शन करेंगे। यस मैडम, बीटीएल इसका बीटीएल पेशेंट इज एग्रीड फॉर बीटीएल। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसका सेक्शन जिन्होंने सेक्शन करना है वो इसको सेक्शन पे बीटीएल कर दें, और जिन्होंने नहीं करना वो फिर इसकी कोई पेशेंट के साथ डिस्कस करके, क्योंकि देखो इसका लास्ट बॉर्न चाइल्ड इज 5 years बैक,
जो कि ठीक है, एज इसकी 30 ईयर्स है, तो इसमें हम BTL कर सकते हैं। हमारी अंडर 5 ईयर एज जो मोर्टेलिटी है वो भी पेरीनेटल मोर्टेलिटी की तरह काफी हाई है, इस वजह से उसका लास्ट वन चाइल्ड 5 ईयर्स है, वी कैन गो फॉर BTL। लेकिन वही बात है, पेशेंट कपल के साथ बेसिकली डिस्कस करके, और अगर ये नॉर्मली आप इसको डिलीवर करते हो तो फिर उसमें भी BTL वाली ऑप्शन तो उसमें भी है, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी या फिर 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल उसका एक तरीका होता है BTL करने का थ्रू मिनी लैब। ठीक है, तो इसको मैडम एक क्वेश्चन पूछना, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के लिए हमने HB कितनी रखनी होती है मैक्सिमम? मैक्सिमम के मिनिमम? मैम मिनिमम, सॉरी मिनिमम। हाँ, मैक्सिमम तो कोई भी लिमिट हो सकती है। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के लिए फिर 10+ होनी चाहिए। जब आपने अगर इलेक्टिव सेक्शन आप पे करते हो और सपोज इसको 38 वीक्स पे, तो तब तक तो प्रोबेबली ये 10 हो ही जाएगी, अगर बीच में कोई और वजह नहीं निकलती। अगर फर्ज किया कोई स्वेट इसकी विजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो उसमें तो आपको फिर मैटरनल सेफ्टी के लिए और बच्चे की सेफ्टी दोनों के लिए भी इमरजेंसी सेक्शन करना पड़ेगा। ब्लड आपने ऑलरेडी अरेंज किए हुए हैं, वो आप उसको लगा सकती हो फिर। अच्छा, और मैडम अगर प्री-इक्लेम्पसिया होता तो भी हम इसको 38 वीक्स पे ही डिलीवर करवाते? देखो, प्री-इक्लेम्पसिया का आप लोग ना सिनेरियो सारे मिक्सअप कर देते हो। ये है कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, सो दैट वे वी आर प्रोलॉन्गिंग द प्रेगनेंसी टिल 38 वीक्स। प्री-इक्लेम्पसिया मीन्स के जो एक इक्लेम्पसिया से पहले वाली स्टेज होती है, उसमें डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कितने सीवियर हैं, और उसमें डिपेंड करता है कि हाइपरटेंशन कंट्रोल हुई या ना हुई। प्री एक्लैम्पसिया को अगर कंट्रोल कर लेते हो तो ठीक है, नहीं कंट्रोल होता तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज द आंसर। तो उसको उसके साथ मिक्सअप ना करें, क्योंकि ये कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है जो जिसको हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर रहे हैं। फिर प्री एक्लैम्पसिया को हम पहले कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ना कंट्रोल हो तो फिर उसमें हम डिलीवरी कर देते हैं। कंट्रोल्ड है, उसकी प्री-इक्लेम्पसिया भी कंट्रोल्ड है, प्री-इक्लेम्पसिया है लेकिन कंट्रोल्ड और मेडिकेशन है, उसको 37 वीक्स में कराएंगे या फिर उसको कंजर्वेटिव पे लेके जाओ। कंट्रोल्ड का मतलब है सारी चीजें सेटल हैं। अब कंट्रोल्ड में देखो, प्री एक्लैम्पसिया हम कब लेबल करते हैं? दिस इज नॉट ओनली हाइपरटेंशन, दिस इज हाइपरटेंशन इन कॉम्बिनेशन विद एनी अदर प्रॉब्लम, जिसमें चाहे सिम्टम्स हो, चाहे प्रोटीन यूरिया, यानी कोई भी टारगेट ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो प्री एक्लैम्पसिया होगा। तो ये हाइपरटेंशन और एक्लैम्पसिया के दरमियान वाली स्टेज है। तो प्री एक्लैम्पसिया में अगर सारी चीजें कंट्रोल हैं तो फिर वो प्री एक्लैम्पसिया तो ना रहेगा, वो तो फिर कंट्रोल हो गया। सपोज इसमें कोई रीनल फंक्शन का मसला नहीं है, लिवर फंक्शंस का मसला नहीं है, कोई कोएगुलोपैथी नहीं है जैसे हेल्प सिंड्रोम वगैरह होता है, या फिर उसके सिम्टम्स कंट्रोल हैं, तो फिर उसमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में कोई इश्यू नहीं है। बट इफ हाइपरटेंशन इज कंट्रोल बट शी इज हैविंग अदर सिम्टम्स, जैसे उसको स्वेयर हेडेक है, ब्लडिंग ऑफ विजन है, या लिवर फंक्शन में मसला आ रहा है, या रीनल फंक्शन में मसला आ रहा है, तो फिर उसको हम प्री एक्लैम्पसिया की लाइन पे ही मैनेज करेंगे। मतलब ये कि फिर हम उसको अर्ली डिलीवरी का सोचेंगे। ठीक है मैडम, इसमें एक तो हाइपरटेंशन है मैडम, दूसरा अनएक्सप्लेन्ड APH है। तो मैडम हम इसे अब जैसे 37 पे ये टर्म पे पहुंच गई है, तो मैडम व्हाई वी आर प्रोलॉन्गिंग इट? मैडम हम 37 पे नहीं कर सकते? देखो, जो अनएक्सप्लेन्ड APH की जो आप बात कर रहे हो, अगर वो कंट्रोल हो गया है तो फिर उसमें क्या मसला है? बेबी इज ओके, CTG इज ओके, बायोफिजिकल प्रोफाइल इज ओके, डॉपलर फ्लो इज शोइंग नो प्रॉब्लम। और क्योंकि वो ये तो हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसीज में तो ये आप ऑनगोइंग फीटल सर्वेलेंस पे जाते ही हो, तो ये सारी चीजें ठीक हैं, वो आप वीकली असेस कर रहे हो, तो व्हाई टू हरी? अगर उसमें कोई मसला आ जाए, कोई लाइकर वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो, कोई बायोफिजिकल प्रोफाइल में प्रॉब्लम हो, कोई और इस तरह का मसला है, तो फिर तो उसमें कोई वजह बनती है। मे बी इन दैट केस अर्लियर देन 37 वीक्स इवन। लेकिन अगर कोई मसला नहीं है तो 38 वीक्स तक ले जाओ। जितना आप ज्यादा आगे ले जाओगे उतना ही बेहतर है बेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। Madam, as the blood pressure is controlled, लेकिन APH is also settled, we discharge the patient or keep admitted for the observation for डिपेंड करता है पेशेंट के, because blood transfusion से तो 36 प्लस हो ही जाएगी। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट के। देखो, अभी पेशेंट एनीमिक है, अभी हमने इसको ट्रीट नहीं किया। फिर ये भी डिपेंड करता है पेशेंट कितनी दूर से आई है, उसको होम सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है। इमरजेंसी में जो पेशेंट आपके पास प्रेगनेंसी में पहली दफा आई विद ऑल दीज थिंग्स,
तो उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आपके पास रेगुलर विजिट के लिए आएगी। तो उस सूरत में जो पेशेंट आपके पास अनबुक्ड हो, जो जिसको चीज़ों की सिग्निफिकेंस नहीं पता हो, इज नॉट बॉदरिंग अबाउट हर इशू सो मच, उसको प्रॉब्लम है काफ़ी अरसे से ये एनीमिया के भी सारे साइन सिम्टम्स, बट शी हैज़ नॉट येट कम टू द हॉस्पिटल टिल शी हैज़ डेवलप्ड द APH। तो उस सूरत में पेशेंट को फिर एडमिटेड रखना ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज एनी टाइम शी कैन हैव अनदर एपिसोड ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू मॉनिटर हर ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये पेशेंट नॉन कॉम्प्लाइंट अनबुक्ड वाली कैटेगरी में आ जाएगी। अलबत्ता ये अगर बहुत करीब ही कहीं रहती है तो आप उसको समझा बुझा के भेज सकते हैं कि इसमें कितना जरूरी है उसका बार बार आना। ठीक है मैम, मेरा एक क्वेश्चन है गायनी से रिगार्डिंग। इससे रिगार्डिंग मैम गायनी पेशेंट के रिगार्डिंग है। पेशेंट का HB था 4.6 और मैम वो साइन सिम्टम्स ऑफ एनीमिया के साथ आई थी। उसको 2 पिन ट्रांसफ्यूज किए और 2 फेरी इंजेक्ट लगाए। तो मैम इसका हीमोग्लोबिन कब रिपीट करना चाहिए? देखो जो होता है जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगाते हो तो जाहिर है देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द वेरियस स्पेसेस। उसमें भी कम से कम आप हीमोग्लोबिन लेवल जो करवाते हैं वो 48 आवर्स के बाद करवाते हैं, प्रेफरेबली आफ्टर 72 आवर्स। जब आप इंजेक्टेबल आयरन देते हैं तो उसमें कम से कम 2 हफ्ते बाद, लेकिन उससे पहले आप रेटिक काउंट करवा सकते हैं जिससे पता चलेगा कि हेमोपायसिस इज गोइंग ऑन। एंड वेन एवर यू आर इन्फ्यूजिंग पैरेंटल आयरन, उसके साथ आपने फॉलिक एसिड जरूर देना होता है, वरना मेगैलोब्लास्ट बन जाते हैं, बिकॉज फॉलिक एसिड इन कॉम्बिनेशन विद आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर हेमोपायसिस। तो इसलिए इसको कम से कम 2 हफ्ते बाद आप करवाओगे। एक ज्यादा से ज्यादा आपने रिस्पॉन्स देखना है तो 1 हफ्ते के बाद रेटिक काउंट करवा लो, वो रेस्ट आएगा तो इसका मतलब है RBCs बन रहे हैं। ठीक है। यस मैडम, रिगार्डिंग इसी मैंने क्वेश्चन पूछना है कि अगर ये पेशेंट 38 वीक्स पे स्पॉन्टेनियस डिलीवरी में नहीं जाती है तो हम इसकी स्वीपनिंग करेंगे, एंड देन तब भी नहीं जाती तो देन वी गो फॉर इंडक्शन इन दिस केस। इंडक्शन हम कर सकते हैं ब्रीच में, कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। ठीक है। ब्रीच के बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद इंडक्शन नहीं हो सकती, इंडक्शन हो सकती है। जब हमने उसको वेजाइनली डिलीवरी कराना है तो इंडक्शन वाली डिलीवरी और स्पॉन्टेनियस डिलीवरी में क्या फर्क होगा? अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हम इसको नॉर्मल डिलीवर ही कराएंगे तो। यस मैम, थैंक यू सो। यहाँ पे हम एंड कर दें। मैम मुझे एक क्लास क्वेश्चन पूछना था। जी मैम वो BTL जब हम करते हैं नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के बाद तो हम इंटरवल BTL करते हैं, तो वो 6 वीक्स के बाद होता है नॉर्मली पेशेंट में। और मैम कार्डिक पेशेंट्स में वो जल्दी होता है कि उसका क्या क्राइटेरिया होता है कार्डिक पेशेंट्स में? कार्डिक पेशेंट में भी वही क्राइटेरिया होता है, क्योंकि उसमें देखो इमीडिएटली आप पोस्टमार्टम कर दो तो उसमें तो जाहिर है बिल्कुल फंडस के करीब होती है, उसके एम्बलाइकस के करीब होती है उसकी फंडस। अगरचे वो टेक्निकली जरा मुश्किल ही होता है करना, बट यू कैन डू इट। अब इसमें जो इंटरवल BTL है जो ज्यादा कॉमनली किया जाता है वो 6 वीक्स पे किया जाता है, तो इसमें हम कार्डियक पेशेंट में क्यों नहीं करेंगे? कार्डियक पेशेंट में ना करने की क्या वजह? पता नहीं मैम, एक बार सुना था कभी, सेम ही है ना। मतलब उसका देखना ना, हमेशा हर चीज के पीछे वाई तलाश किया करो कि वाई नॉट इन कार्डियक। जैसे कार्डियक पेशेंट में हमने अब IUCD नहीं रखनी होती, हमें पता है उससे सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के चांसेस हो सकते हैं, तो उसमें हम OCPs वगैरह बेचारे फ्लूइड रिटेंशन के वो सारी चीजें, कुछ जैसे कार्डियोमायोपैथी वगैरह उसमें हम ये नहीं करते। लेकिन अब इसमें जो BTL है उसमें इंटरवल BTL करने में तो कोई हर्ज नहीं है, कम से कम मेरा तो अपना ये ख्याल है। ठीक है। और मैम इमीडिएट BTL करते हैं वो विदिन 24 आवर्स में ही हाँ, वो करनी विदिन होती है? 24 आवर्स होता है। ओके, थैंक यू। मैम प्लीज एक रिप्लाई करें। मैम मैं बहुत पहले से पूछना चाह रही हूँ, मौका नहीं मिला। मैम अगर हमने इसकी हीमोग्लोबिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 9 कर दी है तो हम आगे एग्जामिनर को क्या बताएंगे कि अब मैं जो है इसको BD डोज आयरन पे रखूंगी 11 तक, BD डोज जो है ओरल पे रखूंगी अप टू 11 तक लेके जाने ओरल के तो आप लिए। दे सकती हो, ओरल में तो कोई मसला नहीं है, ओरल तो आप बिल्कुल दे सकते हो। मैडम इसके साथ ही वन मोर क्वेश्चन मैडम, जब हम आयरन इंजेक्टेबल देते हैं तो उसकी डोज कंप्लीट होने के बाद फिर हम ओरल आयरन स्टार्ट करते हैं? नहीं, लेकिन 10 हमने डेज की बात करते हैं, वो इसलिए कि जो आपने टोटल आयरन भेजा है सिस्टम में
वो जो होती है आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ट्रांसफरिंग, वो तो उसको बाइंड कर रही होती है, ठीक है। उसने अब इसलिए जीआईटी से उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वो दैट विल गो वेस्ट जो आप ओरल आयरन दोगे। तो इसलिए कम से कम 10 डेज आफ्टर आयरन इन्फ्यूजन आप ओरल आयरन नहीं देते। उसका नुकसान तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो यानी वेस्ट हो जाएगी बस। तो इसलिए उसका फायदा कुछ नहीं होता, आप उसको 10 डेज के बाद रीस्टार्ट कर दें, ठीक है। थैंक यू मैम। चलो जी, थैंक यू मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।